Hello everyone, welcome you all to Vision Q YouTube channel. So in my last video I was discussing the topic number system, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे the basics of numbers, what is real numbers and types of numbers, okay, all this. So today in this part or second part we'll discuss the very important concept which is divisibility rules and concepts. ठीक है? So you have not watched the first part, please do watch that part first and then come back to this video, जिसका लिंक आपको मिलेगा in the description box. ठीक है? So if you are new to our channel, please do subscribe to our channel to get regular notification about different important videos जो कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So we'll discuss divisibility rules of certain numbers first and then we'll come back to some large numbers जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है? So if I talk about the first topic, divisibility rules and concepts. Okay? So now I can see here that if I talk about divisibility rules of some basic numbers, क्या क्या numbers आता है. ठीक है? First of all we'll discuss those numbers जिसका divisibility concept बिल्कुल सेम है. जैसे कि आप सभी को पता होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16. ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट दिस नंबर्स, ये सब क्या है? दीज ऑल आर पावर्स ऑफ 2. ओके, 2 का मतलब 2 to the power 1, 4 का मतलब 2 square. ओके, 8 is 2 cube and 16 is 2 to the power 4. So these all are powers of 4. So these all powers of 2 have the same divisibility concepts. ठीक है? सभी का सेम कॉन्सेप्ट ही है. ठीक है? एंड इफ आई टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ 5, तो 5 का पावर्स क्या क्या होता है? 5 to the power 1 is 5, 5 square is 25. Okay, 5 cube is 125 and 5 to the power 4 is 625. So these all are powers of 2 and these are powers of 5. So first we'll discuss those divisibility concepts which are same. जैसे कि if I talk about divisibility of 2 and powers of 2 and powers of 5, these all are same. तो first is divisibility by 2. तो how to check एक number 2 से divisible कैसे है? तो 2 का मतलब क्या है? 2 to the power 1. So जितना पावर है उतना ही डिजिट आपको लिखना है. That means if the last one digit of a number is divisible by 2, then the whole number is divisible by 2. ठीक है? So last one digit should be divisible by 2. और last one digit 2 से divisible कब होगा? Only when that number is an even number. That means even number can be 2, 4, 6, 8 और 0. ठीक है? तभी जाके वो नंबर होगा divisible by 2. If I talk about divisibility of 4, 4 का मतलब क्या है? 2 square. तो यहाँ पे आपको पावर से मतलब है. ठीक है? So 2 square मतलब power is 2. So if the last two digits of a number are divisible by 2, then the whole if the last two digits are divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. ठीक है? So आपको देखना है only the last two digits. Similarly to find out divisibility by 8, 8 का मतलब क्या है? 2 cube. So if the last three digits of a number are divisible by 8, then the whole number is divisible by 8. Similar is the case with 16. ठीक है? 2 to the power 4, if the last 4 digits of a number is divisible by 16, then that whole number is divisible by 16. तो similar is with the case of other powers of 2 as well. जैसे 32, ठीक है? 64, 128. ठीक है? सेम रूल ही आपको फॉलो करना है. तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी इन केस ऑफ पावर्स ऑफ 2. ठीक है? तो सेम केस है आपका. अगर कोई नंबर आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी 5, 25, 125 एटसेट्रा. ठीक है? तो 5 का मतलब क्या है? 5 to the power 1. अगेन आपको पावर से मतलब है. ठीक है? सो इफ द last one digit of a number is divisible by 5, then that number is divisible by 5. और लास्ट वन डिजिट 5 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट में मिलेगा आपको 0 और 5. ठीक है? जब एक नंबर का लास्ट में 0 या फिर 5 होगा, then that number will be divisible by 5. If I talk about 25, it means 5 square, isn't it? So if the last two digits of a number is divisible by 25, then that number is divisible by 25.
5 क्यूब इज 125। तो एक नंबर 125 से डिविजिबल कब होता है? जब इसका लास्ट थ्री डिजिट्स डिविजिबल होता है बाय 125। सिमिलर इज द केस विथ 625 ऑल्सो, एंड ऑल्सो विद द रिमेनिंग पावर्स ऑफ 5। ठीक है, सो 625 से क्या देखना होगा? लास्ट 4 डिजिट्स को। इफ द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ ए नंबर is divisible by 625, then the whole number is divisible by 625. So powers of 2 or powers of 5 के लिए concept is same concept follows for the divisibility rules of 2 and 5, powers of 2 and powers of 5. So if I give an example here, so okay, for example, suppose एक नंबर है आपके पास which is 1608, ठीक है, which is 1608। तो आपको देखना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, whether divisible by 2, divisible by 4, divisible by 8, divisible by 16 and so on. So 2 के लिए क्या देखना है? 2 का मतलब क्या है? 2 to the power 1. So last one digit or the last digit should be divisible by 8, तभी जाके whole number divisible होगा 8 से। तो इसका लास्ट में तो 8 है और 8 is an even number, और कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। यस, ओके। सो इफ आई सी द डिविजिबिलिटी ऑफ 4 हियर, तो 4 का मतलब क्या था? 2 स्क्वायर। सो लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4, तभी जाके वन होल नंबर होगा डिविजिबल बाय 4। सो इसका लास्ट 2 में कितना है? 08। 08 का मतलब क्या होता है? 8 ही होता है, और 8 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 का मतलब क्या था? 2 क्यूब। ठीक है, सो लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, तभी जाके आपका नंबर होगा डिविजिबल बाय 8। तो इफ आई सी द लास्ट 3 डिजिट्स, इट इज 608। इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, तो मतलब ये नंबर डिविजिबल है 8 से, क्योंकि इसका लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल है बाय 8। तो 16 का मतलब क्या है? 2 to the power 4, तो लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16, तभी जाके नंबर होगा डिविजिबल बाय 16। सो इसका तो इसके पास तो नंबर 4 डिजिट्स ही तो है, तो इफ आई डिवाइड दिस बाय दिस, ओके, आई विल गेट 100 पॉइंट समथिंग, तो मतलब यहाँ पे कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो इज दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 16, बट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 4 एंड 8। सो नेक्स्ट देखते हैं 5 के एग्जाम्पल। हाँ, हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 5, 25 एंड ऑल दिस। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक ए नंबर विच इज 1250, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। हाँ, सो आपको देखना कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 125 से डिविजिबल है, एंड ऑल दिस। सो अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट, 5 का मतलब क्या था? 5 to the power 1। सो लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो इसका लास्ट 1 डिजिट और लास्ट डिजिट कितना है? 0 है। 0 हो 5 हो, 5 से डिविजिबल होता है, तो मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। 25 का मतलब क्या होता है? 5 स्क्वायर। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25, तो इसका लास्ट 2 में कितना है? 50 है, और 50 25 से तो डिविजिबल है। ठीक है, 2 बार जाएगा, डिविजिबल है, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 25। 125 का मतलब क्या था? 5 क्यूब। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, तो इसका लास्ट 3 को डिवाइड करके देखते हैं। 125 250, ये 2 टाइम्स ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो सिंस द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 125, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस होल नंबर इज अगेन डिविजिबल बाय 125। तो ऐसे आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो फॉर पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 5। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ठीक है, ये था आपका डिविजिबिलिटी ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ पावर्स ऑफ 5, जो कि सेम है। ठीक है, पहले वो डिस्कस करते हैं जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो इफ आई सी द नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट्स, 3 और 9 का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड डिविजिबिलिटी बाय 9 आर द सेम। तो क्या देखना होगा आपको? दोनों केसेस में आपको देखना है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। ओके, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो एक नंबर का अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी होगा 3 से डिविजिबल।
अगर एक नंबर का सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो तभी जाके वो नंबर भी होगा 9 से डिविजिबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक नंबर को लेके देखते हैं 1209। ठीक है, सो आपको देखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं और ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या देखना होगा आपको, सम ऑफ डिजिट्स। तो इफ आई से सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर 1 + 2 3, 3 + 9 is 12, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना मिलेगा 12। एंड वी नो दैट 12 is divisible by 3, so because of that this number is divisible by 3, but 12 is not divisible by 9, so because of that this number is not divisible by 9। ठीक है, सो होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है फॉर 3 and 9। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 6। ठीक है, 6 का कॉन्सेप्ट क्या होता है। 6 हो, उसके बाद 12 हो, ठीक है, उसके बाद 10, 14, जितना भी नंबर्स है, जितने भी बाकी नंबर्स है, सभी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट 6 हियर, 6 को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक करना है। ठीक है, टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कि 6 से एक नंबर डिविजिबल कैसे होता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेक करना है 6 को। तो 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप ब्रेक कर सकते हो 1 × 6, आइदर आप ब्रेक कर सकते हो 2 × 3। लेकिन जितना हो सके आपको 1 को नहीं लाना है। ठीक है, आपको यू शुड नॉट ब्रिंग 1 हियर। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे 2 × 3। ठीक है, सो इसको ब्रेक करते हैं 2 × 3। तो अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल है और अगर एक नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो तभी जाके वो नंबर डिविजिबल होगा बाय 6। ठीक है, तो 6 को ब्रेक करना है 2 और 3 में। ठीक है, सो अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी जाके वो नंबर डिविजिबल होगा बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, इफ आई सी द केस विथ 12 को ब्रेक करने का क्या क्या ऑप्शन होता है, 2 × 6 भी है, 4 × 3 भी है, लेकिन आपको ब्रेक करना है 4 × 3। व्हाई, क्योंकि 4 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। मतलब इन दो नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दिस इज इक्वल टू 1। सो सच नंबर्स आर नोन एज, ओके, इस नंबर्स का भी एक नाम होता है। ठीक है, जो आपको मिलेगा बाद में। इन नंबर्स का नाम है आपका को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब क्या है, प्राइम टू ईच अदर, मतलब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। तो हमेशा आपको एक नंबर को ब्रेक करना होता है एज 4 × 3, नॉट 2 × 6, बिकॉज यहां पे तो कॉमन 2 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आपको नहीं ब्रेक करना है, आपको ऐसे ब्रेक करना होगा एज 4 × 3। तो 12 को ब्रेक करता है 4 × 3 से। ठीक है, सो नंबर शुड बी को प्राइम, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नंबर शुड बी को प्राइम, देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन नंबर्स एक्सेप्ट 1 बिटवीन दिस 2 नंबर्स। तो अगर एक नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तभी जाके वो नंबर डिविजिबल होगा बाय 12 ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 12। सभी नंबर्स का सेम है। जैसे 10 की अगर बात करूं तो 10 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 2 × 5। ठीक है, 10 को ब्रेक कर सकते हैं 2 × 5। तो अगर एक नंबर 2 से भी डिविजिबल है, अगर एक नंबर 5 से भी डिविजिबल है, तभी जाके वो नंबर डिविजिबल होगा बाय 10। ठीक है, और आप सभी को पता ही होता है कि 10 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट में 0 मिलेगा। ठीक है, 0 कैसे आता है, एक नंबर डिविजिबल होना है 2 से भी और 5 से भी। 2 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट में होगा इवन नंबर, दैट मीन्स आइदर 0, 2, 4, 6 एंड 8। और 5 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट में 0 और 5 होता है। सो दोनों से डिविजिबल कब होगा, ऑब्वियसली जब लास्ट में 0 होगा, इजंट इट, जब लास्ट में 0 होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट 10 से चेक करने के लिए इजी होता है, जब लास्ट में क्या होगा, लास्ट नंबर शुड बी 0, तब होगा नंबर होगा डिविजिबल बाय 10। सेम इज द केस विथ 14। ठीक है, 14 में क्या देखना है, 14 को ब्रेक कीजिए 2 नंबर्स पे व्हिच आर को प्राइम, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या ऑप्शन है मेरे पास 2 × 7। तो अगर एक नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, तभी जाके वो नंबर डिविजिबल होगा बाय 7। अच्छा, 7 का जो डिविजिबिलिटी है, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 13, 17 एटसेट्रा, दे डज नॉट कॉन्टेन एनी फिक्स्ड रूल। इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। तो इट विल बी बेटर फॉर यू इफ यू जस्ट डिवाइड दैट नंबर बाय 7।
जो भी नंबर आपको दिया होगा, सपोज जो भी नंबर्स आपको दिया होगा, आपको 7 से डिवाइड करके डायरेक्टली देख लेना है कि डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है, तब ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है. डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 13, 71, 17, 23 एंड सो ऑन. इफ आई टॉक अबाउट 15, सेम कॉन्सेप्ट. कैसे ब्रेक करेंगे इसको? 3 and 5. तो अगर एक नंबर डिविजिबल है बोथ 3 and 5 से, तभी जाके वो नंबर डिविजिबल होगा 15 से भी. हमेशा आपको याद रखना है एक चीज, दैट आपको ब्रेक करना है इनटू 2 को प्राइम नंबर्स. जितना भी नंबर्स बाकी नंबर्स है सभी को आपको ब्रेक करके देखना है, ठीक है. जैसे कि अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ 72, डिविजिबिलिटी ऑफ 88, एसएससी का पेपर में ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है. सो इफ आई टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ 72, हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 72? ब्रेक दिस नंबर इनटू 2 नंबर्स व्हिच आर को प्राइम. तो कैसे करेंगे? 8 and 9, इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1. तो अगर एक नंबर डिविजिबल होगा 8 और 9 दोनों से, एंड यू नो हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 8 and 9, I have discussed in the first part of this video, isn't it? So if a number is divisible by both 8 and 9, तभी जाके वो नंबर डिविजिबल होगा also by 72 and by 88. अगर एक नंबर डिविजिबल है 8 और 11, these are the 2 co-prime numbers of 88. So if a number is divisible by both 8 and 11, तभी जाके वो नंबर डिविजिबल होगा by 88, ठीक है. अभी बाकी है कि 11 का डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है, ये बाकी. इसको देखिए अभी. ओके, डिविजिबिलिटी बाय 11, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स है, ठीक है. सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, मैं फर्स्ट एग्जांपल के हिसाब से देखता हूं, ठीक है. सपोज 14641, आपको देखना कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं. सो आपको हमेशा लास्ट से देखना है. ये आपका फर्स्ट प्लेस मतलब ये ऑड प्लेस, ये सेकेंड प्लेस मतलब ये इवन प्लेस, ये थर्ड प्लेस अगेन ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेस का डिजिट का सम. तो यहाँ पे ऑड प्लेस में क्या क्या है? 1, 6 and 1. तो 1 + 6 + 1 is 8. सिमिलरली आपको निकालना है सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. इवन प्लेस में क्या क्या है? सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. तो इवन प्लेस में क्या क्या है, मतलब सेकेंड प्लेस और फोर्थ प्लेस में क्या क्या है? 4 और 4, इसका सम कितना है? 8. देन सब्सट्रैक्ट दिस 2. सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस का आपको लेना है डिफरेंस, ठीक है. डिफरेंस वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जो भी लार्जर नंबर है उसको फर्स्ट एंड स्मॉलर को सेकंड में, ठीक है. सो इफ आई सी द डिफरेंस है, इसका डिफरेंस क्या मिलेगा? 0. तो जब भी ये डिफरेंस 0 आता है और ए मल्टीपल ऑफ 11, whenever this difference is 0 or any multiple of 11, जैसे कि 11, 22, 33 etc. If the difference between the sum of digits at odd places and the sum of digits at even places, if this difference is either 0 or a multiple of 11, तभी जाके वो नंबर डिविजिबल होगा by 11. मतलब ये नंबर डिविजिबल है by 11. तो 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है और ये थोड़ा डिफरेंट है देन द अदर डिविजिबिलिटी रूल्स. तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है. तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस वुड बी 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है. सो ये सब डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो इन दिस पार्ट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड द डिविजिबिलिटी रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट, विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल्स जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विजन क्यू फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोस इन द फ्यूचर. तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.